السلام علیکم ناظرین، فور ٹی وی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ سید انوار اللہ غوری۔ آگے بڑھنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ عظیم تر حیدرآباد میں ڈبل بیڈ روم مکانات کی تعمیری کاموں میں تیزی لانے عہدیداروں کو وزیر اعلیٰ کی ہدایت۔ انٹرمیڈیٹ 2 مارچ سے شروع ہونے والے سالانہ امتحانات کے لیے تمام انتظامات مکمل، برقع پہننے کی پوری اجازت رہے گی۔ صنعت نگر میں میڈیکل کالج قائم کیا جائے گا۔ 30 تا 40% نشستیں مزدور اور ملازمین طبقے کے بچوں کے لیے ہوں گی مختص۔ ٹیچرز اہلیتی ٹیسٹ ٹیٹ کا شیڈیول جاری، 9 اپریل کو امتحان، 23 اپریل کو نتائج کا اعلان۔ چھتری ناکہ، مغل پورہ اور سلطان شاہی میں ساؤتھ زون پولیس کی غیر معمولی تلاشی مہم، 220 ٹو ویلر ضبط، 80 مشتبہ افراد تحویل میں۔ سرقے کی واردات میں ملوث سارق 2 دنوں کے اندر گرفتار، 5 لاکھ روپے مالیتی مسروقات زیورات ضبط، پنجاگوٹا پولیس کی کارروائی۔ سرخیاں آپ نے دیکھی ہے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وزیر اعلیٰ کے چندرا شیکھر راؤ نے عظیم تر حیدرآباد میں 2 کمروں والے 1 لاکھ مکانات کے تعمیری کاموں میں تیزی لانے کی عہدیداروں کو ہدایت دی ہے۔ کیمپ آفس پر منعقدہ جائزہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ جی ایچ ایم سی کے ہر اسمبلی حلقے میں 4740 مکانات کی تعمیر کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ عوام نے ہم پر بھروسہ کرتے ہوئے درخواستیں داخل کرنی شروع کی ہیں۔ ذات پات اور طبقے کا فرق کیے بغیر غریب عوام کو مکانات کی فراہمی کا حکومت نے عہد کیا ہے۔ کے سی آر نے کلیکٹرز کو ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ مستحق افراد کی نشاندہی ریونیو کے عہدیدار کریں گے۔ اراضی کی نشاندہی کے لیے مقامی رکن اسمبلی سے مدد حاصل کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ غریب عوام کو فائدہ پہنچانے کے پروگرام میں سیاسی مداخلت نہیں ہوگی۔ مستحق افراد کی نشاندہی شفاف انداز میں ہونی چاہیے۔ عظیم تر حیدرآباد کے سلم علاقوں کا جائزہ لیتے ہوئے وہاں پر مقیم افراد کو وہیں پر مکان فراہم کیا جائے۔ آئی ڈی ایچ کالونی کے طرز پر مکانات تعمیر کیے جائیں۔ وزیر برقی جگدیشور ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ جی ایچ ایم سی حدود میں برقی کے مرمتی کاموں کو وقت پر پورا کیا جائے۔ عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس لیتے ہوئے وزیر برقی نے کہا ہے کہ کاموں کے وقت پر مکمل نہ ہونے سے عوام کو کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں اور اس سلسلے میں کئی شکایتیں بھی موصول ہوئی ہیں۔ وزیر موصوف نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ کس مقام پر کیا کام چل رہا ہے اور اسے کتنے وقت میں پورا کیا جائے گا، اس کی اطلاع بھی فراہم کی جائے تاکہ عوام میں برہمی پیدا نہ ہو۔ وزیر موصوف نے کہا ہے کہ فروری کے مہینے میں عظیم تر حیدرآباد میں 45 ملین یونٹ برقی استعمال ہو رہی ہے۔ موسم گرما میں برقی کی طلب میں اضافہ ہوگا اور اسی کو دیکھتے ہوئے اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اضافی ٹرانسفارمرز اور دیگر ضروری سامان کو دستیاب رکھا جائے تاکہ شکایت ملنے پر فوری کارروائی کی جا سکے۔ وزیر برقی نے جی ایچ ایم سی کے حدود میں بلا خلل برقی سربراہی کو یقینی بنانے کی بھی عہدیداروں کو ہدایت دی۔ انٹرمیڈیٹ کے 2 مارچ سے شروع ہونے والے سالانہ امتحانات کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ بورڈ کے سیکریٹری اشوک کمار نے بتایا کہ سال اول اور دوم کے لیے جملہ 9,69,664 طلبہ امتحانات میں شرکت کریں گے۔ امتحانات کے لیے 1,257 مراکز قائم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ بورڈ کی طرف سے جاری کردہ ہال ٹکٹ رکھنے والے طلبہ کو ہی امتحان لکھنے کا موقع دیا جائے گا۔ انہوں نے طلبہ سے 15 منٹ قبل ہی امتحانی مراکز پہنچ جانے کی درخواست کی ہے۔ 9 بجے کے بعد امتحان ہال میں داخل ہونے کی اجازت نہیں رہے گی۔ اشوک کمار نے بتایا کہ نقل نویسی کی روک تھام کے لیے بھی اقدامات کیے گئے ہیں۔ طلبہ کو طبی خدمات بھی فراہم کی جائیں گی۔ سیل فون یا دیگر سامان امتحانی ہال میں لے جانے کی اجازت نہیں رہے گی۔ سیکریٹری نے طلبہ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے
हॉल टिकट और इम्तिहान हाल में दिए गए पर्चे की अच्छी तरह जांच के बाद इम्तिहान तहरीर करना शुरू करें। उन्होंने कहा है कि इम्तिहान को शफाफ बनाने के लिए GPRS के जरिए इम्तिहानी मराकज के पास फोन्स को ट्रैक किया जाएगा। 1257 चीफ सुपरिंटेंडेंट, 1257 डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स, 28,287 निगरानकारों को मुतय्यन किया जाएगा। सेक्रेटरी ने बताया कि तमाम तुलबा जो फीस दाखिल कर चुके हैं वो अपना हॉल टिकट वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अगर कोई कॉलेज तुलबा को हॉल टिकट ना देता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल पर अशोक कुमार ने बताया कि इम्तिहान के दौरान बुर्का पहनने की पूरी इजाजत रहेगी। अगर बुर्का पहनने से कोई हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बुर्का पहन के एग्जामिनेशन सेंटर को आ सकते हैं, इसमें कोई प्रोहिबिशन या लैक ऑफ एडमिशन कुछ नहीं है। बुर्का पहन के एग्जामिनेशन आके लिखना कोई मना नहीं है। कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन को आएंगे वो सब 8:30 बजे तक अगर सेंटर पहुंच जाए तो 15 मिनट में चेकिंग होकर वो 15 मिनट से पहले अपने अपने सीट्स एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आके बैठ सकते हैं। 9 बजे के बाद किसी हाल में किसी स्टूडेंट को अलो नहीं करेंगे, इसीलिए उनको अंदर आने की परमिशन नहीं है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि हर स्टूडेंट को 9 बजे से पहले ही पहुंचना चाहिए और 15 मिनट पहले वहां पे हॉल के अंदर रहना चाहिए। हर कैंडिडेट अपना हॉल टिकट हमारे दिया गया वेबसाइट के एड्रेस पे जाकर खुद अपना कैंडिडेट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट एग्जाम गोइंग स्टूडेंट हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं, खुद ब खुद अपने आप कर सकते हैं। कॉलेज से कोई ताल्लुक नहीं है, खुद अपने आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका सेंटर का नाम एडमिशन है www.tsbi.cgg.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर कोई भी किसी एग्जामिनेशन कैंडिडेट अपना हॉल टिकट खुद डाउनलोड कर सकते हैं। टीचर्स अहलियती टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 1 मार्च से 15 मार्च तक ऑनलाइन दरखास्तें मौसूल की जाएंगी। 9 अप्रैल को इम्तिहान मुनक्किद होगा। पहला पर्चा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरा पर्चा दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक मुनक्किद होगा। नताइज 30 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। इस सिलसिले में एलामिया 29 फरवरी को जारी किया जाएगा। मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने बताया है कि सनत नगर के ESI हॉस्पिटल को नाचारा मुंतकिल करने से रियासती हुकूमत ने इत्तेफाक कर लिया है। पीर को इस सिलसिले में याददाश्त मफाहिमत पर दस्तखत किए जाएंगे। जायजा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर ने बताया कि सनत नगर में मेडिकल कॉलेज कायम किया जाएगा, जिसमें 30 से 40% नशिस्तें मजदूर और मुलाजिमीन तबके के बच्चों के लिए मुख्तस की जाएंगी। इस कॉलेज का आइंदा तालीमी साल से आगाज होगा। गोशा महल में 100 बिस्तर वाले दवाखाने के क़याम के लिए भी अगर रियासती हुकूमत अराजी फ्राहम करती है तो गैर मुसल्लमा शोबे में काम करने वालों को तिब्बी खिदमात फ्राहम की जाएंगी। इस मौके पर वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने बताया कि मरकजी हुकूमत ने 500 बिस्तर वाले दवाखाने कायम करने का तयक़ुन दिया है, जबकि अजला में खस्ता हालत में मौजूद दवाखानों की तामीर का काम भी तयक़ुन दिया गया है। उन्होंने बताया कि मरकजी और रियासती हुकूमत के तालमेल से मुलाजिमीन और मजदूर तबके की सेहत से मुताल्लिक इक़दामात किए जाएंगे। तो हॉस्पिटल हमारा आधा तो तोड़ दिए स्टेट गवर्नमेंट का, ये से हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में मिल गया, आधा है वो भी हमने बोला पूरा ले लो, हॉस्पिटल बना लो। हमको नाचार में एक 500 बेड हॉस्पिटल स्टेट गवर्नमेंट को दे दो बोले। वहाँ 250 बेडेड का हॉस्पिटल वहाँ है एक, और एक हाल है और 250 बेडेड हॉस्पिटल बना के दे दिए। तो हम लोग वहाँ रहते, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेज इस्तेमाल कर सकते, मेडिकल कॉलेज को परमिशन में मिल जाता, क्लियर होता। ये दोनों अंडरस्टैंडिंग करके मंडे हम लोग एक MOU कर लेंगे स्टेट गवर्नमेंट। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत से ताल्लुक रखने वाली शतरंज की 2 खातून खिलाड़ियों को फीकस 5 लाख रुपये मंजूर किए हैं। वी नंदिता और वी वर्षिता ने मुख्तलिफ कौमी मुकाबलों में हिस्सा लिया था। दोनों खिलाड़ियों को यह रकम शेड्यूल कास्ट सब प्लान फंड्स के तहत मंजूर की गई है।
वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने रियासती फायर सर्विस के नए लोगों को जारी किया है। वजीर दाखिला ने टोल फ्री नंबर 101 की तशहीर से मुताल्लिक अशिया को भी जारी किया। वजीर दाखिला ने फायर सर्विस के अमले को नए बैचेस लगाए। फायर सर्विस के डीजी राजीव रतन और महकमे दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी 5 और 6 मार्च को शहर का दौरा करेंगे। महकमे जीएडी के चीफ सेक्रेटरी ए सिन्हा ने इस सिलसिले में ओहदेदारों के साथ जायजा लेते हुए नायब सदर जमहूरिया के दौरे के इंतजामात पर तबादला ख्याल किया। हामिद अंसारी शहर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। 5 मार्च को दोपहर 3:50 पर नायब सदर जमहूरिया बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वो सीधे कौमी ज़रई कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रवाना होंगे। 6 मार्च को नायब सदर जमहूरिया 7 गुंबद का मुशाहिदा करेंगे और फिर सुबह 11:50 पर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तेलुगु देशम से टीआरएस में शामिल हुए ई दयाकर राव क्या वजीर हैं या फिर मुस्तकबिल में वजीर आला केसीआर ने उन्हें वजीर के ओहदे का इशारा दिया है? इस तरह की कानाफूसी आजकल आला सतह के ओहदेदारों में हो रही है। जुमेरात को टीआरएस में बाकायदा तौर पर शामिल होने वाले ई दयाकर राव ने जुमा को मिशन भागीरथ के सिलसिले में वजीर आला के दफ्तर से तलब किए गए इजलास में शिरकत की थी। ओहदेदारों ने दयाकर राव की इजलास में शिरकत पर ताज्जुब का इजहार किया। पता चला है कि दयाकर राव ने इजलास के दौरान ओहदेदारों से सवालात भी किए थे। बाज ओहदेदारों ने नाराजगी जाहिर किए बगैर जवाब तो दिया, लेकिन एक रुकने असेंबली के इस तरह से इजलास में शिरकत को नामुनासिब करार दिया। चूंकि वजीर आला की मौजूदगी में ये सब हुआ है और ओहदेदारों ने खुले तौर पर इसका इजहार नहीं किया। इर्रागड्डे में हफ्तेवारी बाजार लगाने वाले छोटे व गरीब ताजिरीन ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें मुकामी पुलिस की हिरासानियों व जुल्म सितम से वाकिफ करवाया। नुमाइंदा रुकने बल्दिया मोहम्मद शरीफ भी उनके हमराह मौजूद थे। बैरिस्टर ओवैसी ने रुकने असेंबली अहमद पाशा कादरी को उनके हमराह आला पुलिस ओहदेदारों से मुलाकात करने की हिदायत दी और ताजिरीन को तयक़ुन दिया कि मजलिस रोजमर्रा कमाकर गुजारा करने वालों के मफादात को ठेस पहुंचने नहीं देगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के बाद इर्रागड्डे के हफ्तेवारी बाजार के ताजरीन को इजाजत मिल गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर अराकीन असेंबली अहमद पाशा कादरी और कौसर मोहिउद्दीन ने छोटे व गरीब ताजरीन को साथ लेकर कमिश्नर सैबराबाद सीवी आनंद से मुलाकात की और उन्हें बताया कि गुज़िश्ता कई सालों से ये गरीब अफराद हफ्तेवारी बाजार में दुकानात लगाकर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन अब पुलिस इसे बंद करवा रही है, जिससे सैकड़ों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने कमिश्नर से कहा है कि 28 फरवरी इतवार को बाजार लगाने की इजाजत दी जाए। इसके बाद मुकामी ताजरीन, पुलिस, मुकामी अफराद और मजलिसी जिम्मेदार आपस में बैठकर इस मसले की यकसुई करेंगे, जिस पर पुलिस ने उन्हें इजाजत दे दी। यहाँ पे आए हुए थे, उनकी मौजूदगी में तकरीबन घंटा 1.5 घंटे तक हम बात किए और हमारा यही मुतालबा है कि 40 साल से ज़्यादा अरसा हुआ ये मार्केट जम के और इतवार का बाज़ार हर तरफ लगता, पूरे शहर में मशहूर है। हमारे पास 4 मीनार से पत्थरगट्टी गुलजार उस तक इतवार का बाज़ार लगता, चंद घंटों का आबिश पे लगता, हर जगह लगता और मशहूर है ये बाज़ार। इस तरीके से लोगों को बेरोज़गार करना, एक कसीर तादाद में बहुत सारे लोग फाकों में मुब्तला हो जाएंगे, उनके कारोबार को अगर मुंतकिल करेंगे। गरीबों को बेरोज़गार होने से बचाने के लिए ताउन करें, हम भी करेंगे, उनको भी करना चाहिए। आज भी हमारा मुतालिबा है, कमिश्नर सैबराबाद की मौजूदगी में तय पाया, कल के इतवार का बाज़ार लगेगा हस्ब साबिक़ और सुबह के टाइम पे वहाँ पर कुछ लोग दौरा करेंगे, हमारे पास के भी लोग रहेंगे, पुलिस के, ट्रैफिक के, बल्दिया के, सब लोग सर्वे करेंगे, करके एक रिपोर्ट बनाएंगे। 4 दिन के बाद एक मीटिंग रख के तमाम लोगों को बुला के उस मीटिंग में रिपोर्ट रख के मशवरा करेंगे, उसके बाद फैसला किया जाएगा। रुकने असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने महकमे आबरसानी व बरकी के ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने मौसम गर्मा में पीने के पानी की किल्लत को पेश नज़र रखते हुए पावर बोरवेल्स खुदवाने की हिदायत दी है। इस मौके पर हल्के मलकपेट के मुख्तलिफ डिवीजन्स के नुमाइंदा कारपोरेटर्स भी मौजूद थे।
नया पुलता चार मीनार रोड पर ट्रैफिक पुलिस ने अचानक कार्रवाई करते हुए फुटपाथ पर कारोबार करने वालों का सामान जब्त कर लिया। इत्तला मिलते ही मुतालिका रुकने असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, रुकने बल्दिया सुहेल कादरी और साबिका रुकने बल्दिया मोहसिन बलाला वहां पर पहुंच गए और आला पुलिस अहदेदारों से बात करके सामान वापस दिलवा दिया। रुकने असम्बली ने बताया कि मजलिस ट्रैफिक में खलल नहीं चाहती और ना ही दुकानदारों के कारोबार को मुतासिर करने देगी। उन्होंने पुलिस अहदेदारों से कहा है कि मुकर्ररा हुदूद की पाबंदी रखने के लिए पुलिस जवानों को मुतय्यन किया जाए। उन्होंने कहा है कि ट्रैफिक में खलल बनने वालों को चालानात किए जाएं, लेकिन आम ताजरीन को हिरासा ना किया जाए। चार मीनार से नए पुल तक ट्रैफिक में खलल अंदाजी के उन्वान पर आज उस्मानिया बाजार के बाबू दाखिले पर उसके सीधे और बाएं जानिब कुछ बर्तन रखे थे। ट्रैफिक पुलिस वाले आके उसको सीज कर लिए। साथ ही साथ जो लोग पट्टन के बाहर है, जो मार्किंग की गई थी उसके बाहर जो लोग हैं उनको भी ले जाने के लिए आए। चुनाचे जिन लोगों का सामान जब्त किया गया उनको वापस करने के लिए बताया गया। इस सिलसिले में ट्रैफिक के आला अहदेदारों से भी बात किया हमें, तो उन्होंने भी तयक़ुन दिया कि ट्रैफिक को सहूलत पहुँचाने के लिए हम ये आर्डर जारी करें। हम भी इससे पहले इसके लिए लेटर दिए थे, लेकिन वो लेटर पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसलिए हम महकमे ट्रैफिक से गुजारिश है कि ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने के लिए आपके जवानों को भी काम करना चाहिए। ट्रैफिक को कंट्रोल करना, गरीबों के कारोबार भी होना, लोगों को भी किसी रुकावट के बगैर जाने का मौका मिलना, यही हमारा मकसद है। इंशाअल्लाह मजीद कोई मसाइल रहेंगे तो इसके लिए पुलिस के आला अहदेदारों से बात करेंगे। गोलकुंडा के अतराफ व अकनाफ के पुलिस में भर्ती के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए मुकामी मजलिस की तरफ से एक माही तरबियती कोर्स का गोलकुंडा प्लेग्राउंड में आगाज हुआ। रुकने असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने इस कोर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने गोलकुंडा के इलाके में सीसीटीवी कैमरों का इफ्तिताह अंजाम दिया। 16 लाख रुपये की लागत से गोलकुंडा के मुख्तलिफ इलाकों में 32 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इफ्तिताही तकरीब में मुतल्लिका एसीपीज, डीसीपीज के अलावा पुलिस के दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। बाबा नगर में महकमे बहबूद खवातीन व अतफाल की जानिब से आंगनवाड़ी तुलबा के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मुहिम के तहत प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। कंचन बाग के सर्कल इंस्पेक्टर एन शंकर, महकमे बहबूद खवातीन व अतफाल की सुपरवाइजर वसंता, मेडिकल ऑफिसर जयपाल रेड्डी और नुमाइंदा कारपोरेटर ने प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने लड़कियों को तालीम की अहमियत से वाकिफ करवाया और सरपरस्तों पर जोर दिया कि वो अपनी लड़कियों की तालीम के मामले में लापरवाही ना बरतें, बल्कि उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए खुसूसी तालीम के सिलसिले में मुअस्सर रहनुमाई करें। दक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी में हफ्ते को सालाना जलसा और ग्रेजुएशन डे का इनेकाद अमल में आया। प्रिंसिपल दक्कन कॉलेज ऑफ फार्मेसी डॉक्टर सैयद अब्दुल अजीज की निगरानी में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में डिप्टी डायरेक्टर डॉग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना बी योगनाथम, डॉक्टर कर्नल GKN प्रसाद, डॉक्टर मुजफ्फरुद्दीन अली खान और डॉक्टर हामिद अब्दुल कय्यूम ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। साल 2015 में कामयाबी हासिल करने वाले तुलबा में असनाद तकसीम किए गए। अदबी सरगर्मियों में नुमाया मुजाहरा करने वालों में भी अवार्ड्स की तकसीम अमल में लाई गई। शुरुका ने ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाले तुलबा को मुबारकबाद दी और शोबे फार्मेसी के मवाक़ों से मुताल्लिक़ तुलबा को मुफीद मशवरे भी दिए। ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाले तुलबा को अहद भी दिलाया गया। मोइनाबाद रोड पर पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 16 साला तालिबा हलाक हो गई है, जबकि दीगर 14 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। शादान कॉलेज में ज़ेरे तालीम फतेह दरवाजा की सैयदा फरहा फातिमा साथी तुलबा के साथ कॉलेज जा रही थी कि उनकी तेज रफ्तार कार ने मोइनाबाद रोड पर एक मारुति कार को टक्कर दे दी। इत्तला मिलने पर रुकने असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने मुतालिका रुकने बल्दिया मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर को दवाखाने उस्मानिया रवाना किया, जहां फौरी तौर पर पोस्टमार्टम करवाकर लड़की की लाश को वुरसा के हवाले किया गया।
साउथ जोन के हुदूद में मुगलपुरा, छतरी नाका और सुल्तान शाही के कृष्णा रेड्डी नगर के स्लम इलाकों में पुलिस की तरफ से हफ्ते की सुबह गैर मामूली पैमाने पर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायणा की क़ियादत में सुबह 6 बजे से कई घंटों तक चलाई गई इस मुहिम में 500 पुलिस मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायणा ने 4TV से बात करते हुए बताया कि दरकार दस्तावेजात न होने पर 220 टू व्हीलर्स को जब्त किया गया, जबकि 80 मुश्तबा अफराद बशमूल बास रॉडी शीटर्स को भी तहवील में लिया गया। उन्होंने बताया कि भवानी नगर के इलाके में इक़दाम कत्ल के मुकदमे में मुलविस एक शख्स को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और एक तलवार भी जब्त की गई है। अवामी निज़ाम तकसीम के तहत सरबराह किए जाने वाले चावल और गुड़ुम्बे के पैकेट्स भी जब्त किए गए। डीसीपी ने बताया कि बच्चा मजदूरी में मुलविस 3 कमसिन बच्चों को बाजियाब कराया गया और 3 हुक्का पार्लर्स जो सुबह तक चलाए जा रहे थे उनके मालिकान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। डीसीपी ने बताया कि गरीब आवाम को डरा धमका कर अराजी और मकानात के दस्तावेजात के साथ छेड़छाड़ का भी पता चलाया गया है और इस सिलसिले में 8 ta 10 अफराद को तहवील में लिया गया है। इनका सरगना मुजीब बताया गया है। वी सत्यनारायणा ने बताया कि 20 मुतासरा अफराद की निशानदही की गई है जिनकी अराजी के दस्तावेजात के साथ छेड़छाड़ की गई। डीसीपी ने बताया कि गरीब आवाम को हिरासा कराने वाले और धमकाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर पुलिस से ऐसे अनासिर के खिलाफ PD एक्ट के तहत कार्रवाई की सिफारिश भी की जाएगी। डीसीपी ने बताया कि तकरीबन 20 कॉलोनियों से पुलिस को तलाशी मुहिम चलाने की दरखास्तें मौसूल हुई हैं। पुलिस अवामी शिकायत के मुताबिक गैर समाजी अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करेगी। पंजागुट्टा पुलिस ने सरके की एक वारदात के मुअम्मे को 2 दिनों में हल करते हुए सारिख को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 25 फरवरी को अमीरपेट में वाक़े ग्रीनलैंड टावर्स के फ्लैट नंबर 404 में सरके की वारदातें पेश आई थी। मकान मालिक चंद्रशेखर ने इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने तहकीकात का आगाज करते हुए जब अपार्टमेंट के जारूबकश बालाजी से शुबे की बुनियाद पर पूछताछ की तो उसने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। बालाजी ने बताया कि 6 फरवरी को जब चंद्रशेखर का लड़का फ्लैट की चाबी गिराकर चला गया तो उसने वो चाबी रख ली और मौका देखकर 25 फरवरी को फ्लैट में दाखिल होकर सरके की वारदात अंजाम दी। पुलिस ने बालाजी के कब्जे से 5 लाख रुपये मालियत के तमाम मसरूका जेवरात को जब्त कर लिया है। माधापुर पुलिस ने 3 आदि सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक M वेंकटेश, B श्रीसेलम और R वेंकटेश को गिरफ्तार कर लिया गया है जो मसरूका मोटरसाइकिलों को 2 से 5 हजार रुपये में फरोख्त कर देते थे। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा सारिकों के कब्जे से 10 मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं जिसकी मालियत करीब 3,75,000 रुपये बताई जाती है। SOT पुलिस ने अलवाल के एक गोदाम पर धावा करके नकली टर्पेंटाइल तैयार करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने हफ्ते की सुबह खनाची गुड़ा के एक गोदाम पर धावा किया जहां B चौधरी नामी एक शख्स गैस के तेल में केमिकल की मिलावट करके गैर कानूनी तौर से नकली टर्पेंटाइल तैयार किया करता था। SOT पुलिस ने गोदाम से 200 लीटर गैस का तेल जब्त करते हुए मजीद पूछताछ के लिए गिरफ्तार शुदा शख्स को अलवाल पुलिस के हवाले कर दिया है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अजीमतर हैदराबाद में डबल बेडरूम मकानात के तामीरी कामों में तेजी लाने ओहदेदारों को वजीर आला की हिदायत। इंटरमीडिएट 2 मार्च से शुरू होने वाले सालाना इम्तिहानात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल, बुर्का पहनने की पूरी इजाजत रहेगी। सनतनगर में मेडिकल कॉलेज कायम किया जाएगा। 30 ta 40% नशिस्तें मजदूर और मुलाजमीन तबके के बच्चों के लिए होंगी मख्तस। टीचर्स एहलियती टेस्ट टेट का शेड्यूल जारी। 9 अप्रैल को इम्तिहान, 23 अप्रैल को नताइज का ऐलान।
چھتری ناکہ، مغلپورہ اور سلطان شاہی میں ساؤتھ زون پولیس کی غیر معمولی تلاشی مہم، 220 ٹو ویلر ضبط، 80 مشتبہ افراد تحویل میں۔ سرقے کی واردات میں ملوث سارق 2 دنوں کے اندر گرفتار، 5 لاکھ روپے مالیتی مسروقات زیورات ضبط، پنجاگوٹا پولیس کی کارروائی۔ اور اسی کے ساتھ ہی 4 ٹی وی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ سید انوار اللہ غوری کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔